Hi, good evening. I hope you like my previous video. So today I'll be helping you with the chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So this chapter is actually an autobiography of Nelson Mandela, and it is like an extract which is taken from this autobiography of Nelson Mandela. In this autobiography, it tells us, or it provides us a glimpse of his early life of Nelson Mandela and his education. So, because this is an autobiography, I'll be helping you with the important questions from the beginning of this chapter. The first important question which is raised here. So let me tell you what part exactly it is taken from the novel or from the autobiography of Nelson Mandela. When he took the oath होता है शपथ लेना. जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने शपथ ली थी, ओथ लिया था. सो इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द सीन ऑफ, और डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द प्लेज दैट मिस्टर नेल्सन मंडेला हैज टुक, राइट. सो इसमें आप क्या सब चीजें मेंशन करेंगे? आई विल बी हेल्पिंग यू विद द सेम. First, Nelson Mandela was the first black president. Nelson Mandela was the first black president who took the oath or pledge. Oath होता है शपथ लेना, pledge is also शपथ लेना. On 10th May 1994. So 1994 10th May को Nelson Mandela ने first pledge लिया. Being a first black president, so he took the oath. Then it was a historic occasion. ये क्या था? एक ऐतिहासिक पल था, historic occasion था. और जो representative of 140 countries they came to attend this inauguration. So representative मतलब होता है नेतृत्व करने वाले. 140 countries के अलग अलग जो नेता थे, राजनेता थे, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, they came here to attend this ceremony, attend this inauguration. Then a question can be asked in one or two marks कि ये occasion कहाँ पे हो रहा था, या where was this ceremony was happening. So you can answer the ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater by the Union building in Pretoria. So ये कहाँ पर हो रहा था? ये हो रहा था एक lovely सैंडस्टोन एम्फीथिएटर है जो कि कहां पर है? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में. तो दिस सेरेमनी वाज टेकिंग प्लेस देयर. देन फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब उन्होंने ओथ लिया, नेल्सन मंडेला ने प्लेज लिया या ओथ लिया, तो उन्होंने अपने ओथ में क्या मेंशन किया या क्या उन्होंने बताया. So you can share this information, or you can use this as in your answer that he pledged to obey. Obey क्या होता है? Obey होता है मानना, कि मैं अपने संविधान को मानूंगा और अपने संविधान को uphold the constitution और आगे बढ़ाऊंगा. यानी मैं तो मानूंगा ही, प्लस मेरे जो कंट्री के लोग हैं उनसे भी I'll make sure that they obey the constitution. Then एक और बात उन्होंने बताई that I devote myself, कहते हैं मैं अपने आप को समर्पित करता हूं अपने देश के लिए. So there is a question that can be raised कि नेल्सन मंडेला किस तरह के देश का अपने साउथ अफ्रीका का फ्यूचर क्या देख रहे थे, या कैसा फ्यूचर चाहते थे. तो उसमें what you can mention is that he pledged to liberate people. वो चाहते थे कि लोगों को आजादी मिले from the bondage of poverty. देखिए guys, I have wrote some few important words here which definitely gonna help you. Apartheid मतलब होता है discrimination on the basis of color. साउथ अफ्रीका में पहले कलर के बेसिस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो that was the reason ये नेल्सन मंडेला का जो पूरा ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे कि किस तरह उनके लाइफ में उन्होंने स्लेवरी फेस की और किस तरह उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर. तो एपाथाइड इज द वर्ड फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. प्लस उन्होंने ये चीज भी देखी कि किस तरह लोग जो है पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, गरीबी से सफर कर रहे हैं. देन
deprivation की वो चाहते थे कि पॉवर्टी कम हो, घट जाए। deprivation का मतलब होता है गाइस घटना। then there is a word gender discrimination, गर्ल्स या बॉयज या मैन या विमेन को लेके डिस्क्रिमिनेशन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स ही वांटेड टू बी बैनिश्ड फ्रॉम हिज कंट्री। उसकी कंट्री से ये चीजें जो हैं ये सब खत्म हो जाए, वो ये चाहते थे। सो ही विश्ड द सन ऑफ फ्रीडम की जो फ्रीडम का सूरज है उनके देश में हमेशा बना रहे। ही विश्ड द सन ऑफ फ्रीडम टू शाइन ऑन हिज कंट्री फॉरएवर। Then guys, after the ceremony, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारी कंट्रीज में भी होता है कि हमारी मिलिट्री फोर्स वगैरह को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसे ही वहां पे भी आफ्टर द सेरेमनी द डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री फोर्स कैरीड आउट, यानी उनकी झांकियां भी निकाली गई। देन जेट और हमारी झांकियों में भी होता है कि जैसे जेट प्लेन जो होते हैं हमारे देश के कलर का स्मोक जो है वो निकलता है, वैसे ही वहां पे भी 5 कलर्स का यहाँ पे स्मोक निकलता है उनके जेट प्लेन से, जो कि है रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन। सो ऑल विच इज द कलर ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। सो गाइज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन सकता है 1 लाइनर 2 लाइनर्स में, दैट व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लैग, वाज दैट अ न्यू साउथ was that a new South African flag or the old one? Guys, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, इट इज इन द एंड 2 national anthems were sung by the whites and blacks. व्हाइट लोगों ने जो है एक डिफरेंट नेशनल एंथम गाया एंड ब्लैक लोगों ने एक डिफरेंट नेशनल एंथम गाया। सो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट हाउ इज द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन या डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन, आप ये सब चीजें मेंशन करके आइए एंड यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। ग्रेट। देन उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, लाइक हाउ डिड द डिजायर फॉर द फ्रीडम, इसका मतलब कि जो उनकी चाहत थी फ्रीडम के लिए, उनके लोगों के लिए, किस तरह इस चाहत ने मंडेला की लाइफ, नेल्सन मंडेला जी की लाइफ किस तरह चेंज कर दी। तो उसमें आप क्या मेंशन कर सकते हैं, that he transformed from the frightened young man. frightened मतलब क्या होता है, एक डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा, जो एक डरे हुए बच्चे से वो किस तरह एक बोल्ड पर्सनालिटी बन के बाहर निकलते हैं, उभरती हैं उनकी पर्सनालिटी। द डिजायर टर्न्ड अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू अ क्रिमिनल, कि किस तरह वो, जैसा कि आपको उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी पता होगा कि वो 21 इयर्स जो है उन्होंने जेल में भी स्पेंड किए हैं गाइस। देन वही चीज ये यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह उनका जो एक सिंपल लाइफ से किस तरह वो ये बहुत ऑब्वियस है कि जब जैसे अगर आप किसी चीज का बहिष्कार करते हो तो गवर्नमेंट भी आपको उसके अगेंस्ट रोकती है, राइट। तो उसी वे में जो है इन्होंने ये जेल भी गए, जेल में भी टाइम स्पेंड करना पड़ा। तो किस तरह वो इन सब चीजों से आगे बढ़े और अपने डर को या अपने लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, दैट्स हाउ यू विल बी डिस्क्राइबिंग these things in this answer. So for example, he transformed from a frightened young man to a bold one. His desire turned a law-abiding attorney to a criminal. He felt himself robbed. उनको ये लगता था कि मेरे साथ ये चोरी हुई है, कि मेरे लोग मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे लोग फ्रीडम नहीं है, अगर मेरे लोग, तो एक तरह से मेरे साथ भी ये ना इंसाफी है, ये चोरी है। दूसरी चीज, अगर वो देखते थे कि मेरे लोगों को गुलाम बनाया गया है, तो उनको ये फील होता था कि ये वो गुलाम नहीं है, मैं भी गुलाम हूं, राइट। सो he felt the slavery of his people as a slavery of his own. It was this desire of dignity and self-respect that changed his life. वो चाहते थे कि हमें भी इज्जत मिले, या ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ रही है। जस्ट बिकॉज हमारा कलर डिफरेंट है डजंट मीन दैट वी विल नॉट गेट फ्रीडम, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस, हालांकि ये कहने के लिए बहुत छोटी बात है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज it was a big problem that it was a big trouble that they were facing. And of course freedom is indivisible. freedom जो है डिवाइजेबल नहीं होती कि गोरे लोगों को फ्रीडम मिली हुई है, ब्लैक लोगों के साथ वो स्लेवरी कर रहे हैं, तो it is indivisible. फ्रीडम जो है वो सबका अधिकार है, इट इज एवरीवन्स राइट, एवरीबॉडीज राइट। सो
द चेन ऑन एनी वन ऑफ हिज पीपल, उनको लग जाता था, मंडेला साहब को लगता था कि अगर मेरा कोई लोग, मेरे कोई जो लोग हैं उनको अगर चेन है, उनको अगर वो बंदी हैं, तो इट इज लाइक अ चेन टू हिमसेल्फ ऑल्सो, कि उनको ये लगता था कि मुझे भी, मैं भी बंदी हूं। और इस तरह उन्होंने वो सारा पेन जो है, दर्द सहा एंड फॉट फॉर देम, और उनके लिए, अपने देशवासियों के लिए लड़ाई की उन्होंने। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क्स के, कि किस तरह उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। और एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सीन। इसमें एक आपके ना कुछ छोटे छोटे मार्क्स, यानी 2 या 3 या 4 नंबर के भी कुछ मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। आई विल बी हेल्पिंग यू विद दैट। जब मंडेला साहब अपनी फर्स्ट स्पीच दे रहे थे, उन्होंने वहां पे एक वर्ड डिस्क्राइब किया, ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन ऑब्लिगेशन ये होता है कि ट्विन ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू मंडेलास, एवरी मैन हैज टू ट्विन ऑब्लिगेशन। वन ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि responsibilities, one towards his family and the other towards his people and his country। यानी एक आपकी responsibility अपनी family को लेके, एक आपकी responsibility है towards your country, towards your people of your country, right? So but in the reign of apartheid मतलब मैंने बताया था आपको, रंग-भेद के डिस्क्रिमिनेशन में लोग जो है अगर अपने देश के लिए सोचते हैं तो they have to leave their family or they are ripped off with their family. So this is the answer that you can write in this twin obligation part. So guys, एक और important question बनता है, what pained Nelson Mandela on becoming the president of South Africa? तो साउथ अफ्रीका के जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे, उन्होंने ओथ दिया, तो अपनी स्पीच में वो कुछ मेंशन कर रहे थे कि वो उनको एक पेन अभी भी मन में है। तो what pain he was talking about? He was talking about that he wanted to thank the people जिन्होंने इतनी लड़ाई की अपने देश को आजाद करने के लिए, या ये जो एपार्थाइड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत काइंड ऑफ सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ। तो ही वांटेड टू थैंक देम। तो आप उसमें ये चीज मेंशन कर सकते हैं दैट मंडेला वाज इन पेन बिकॉज ही वाज अनेबल टू थैंक his comrades, because वो तो अभी है ही नहीं, right? They are no more, but who were unable to see the freedom, they were not able to see the freedom. वो they have sacrificed their life, but they were not able to see the freedom. And he remembered the sufferings and the courage of thousands of patriots. Patriots मतलब होता है देशभक्त। तो वो यही मेंशन कर रहे हैं कि वो याद कर रहे हैं सफरिंग्स, वो प्रॉब्लम्स, वो दर्द जो उन लोगों ने सहा, जो करेज जो उनमें साहस था, जो हजारों पैट्रियट्स, जो देशभक्तों में साहस था। तो आप ये चीज उसमें मेंशन कर सकते हैं। देन देयर इज वन मोर क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड, हाउ डज द नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज एंड ब्रेव मैन? करेज का मतलब कैसे वो डिफाइन कर रहे हैं? करेज का मतलब डिफाइन कर रहे हैं कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, डर कम होना इज नॉट करेज, बट ट्रायम्फ ओवर इट, यानी उस पे डर पे काबू पाना इज करेज। और ब्रेव मैन कौन है? ब्रेव मैन वो नहीं है जो कि डर को महसूस करता है, who feels the fear, who feels the afraid, but who conquer the afraid is the brave man। जो अपने डर पे काबू पा लेता है वो है brave man। So guys, I hope you like the video, and these are the important questions that can be asked in your exam, and thank you so much. Thank you.